Assalamu alaikum students, welcome back to our spoken English class. Today I will teach you how you can speak English and how to introduce yourself for a job interview or in any professional environment, how to introduce yourself in any networking event or in any other situation where you have to show your professionalism. So one thing you have to remember that this introduction is not same as to meet with your friend in any party or in any event or introducing yourself to your classmates. It's not about that. This interview and this introduction is called formal introduction, how to introduce yourself in a formal way. Today I will teach you how to introduce yourself in a formal way to get any job interview or in any professional environment, and prepare some basic answers about yourself so that you can introduce yourself with confidence, and keep your answers short and simple so you have less time to make mistakes. So let's get started how to introduce yourself in a job interview and how you can prepare yourself for a job interview. Well, students, here are some basic steps which are most important for any job interview. You have to write these all steps in your diary, and you have to practice them again and again as I am going to teach you. First of all, we are going to start with greetings. As I teach you in the previous lecture, without greetings we should not start our conversation. So basically interview is the most important thing for us, so we should start with greetings, same like as assalamu alaikum. Otherwise you can say that good afternoon ma'am, good afternoon sir, assalamu alaikum ma'am, assalamu alaikum sir. After greetings, you have to thank them. They give you this opportunity to introduce yourself in front of theirs. So you can say that thank you, ma'am, thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. Then you have to pronounce your full name, those names which have written in the ID card. वो नाम जो आपकी ID कार्ड पे लिखा हुआ है वही नेम आपने प्रोनाउंस करना है. आपने कहना है माई नेम इज़ रुबाब ज़हरा, फुली नेम आपने बोलना है. उसके बाद आपने अपनी प्लेस बतानी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं या जहाँ आप रह रहे हैं. यू कैन से दैट आई एम बिलोंग्स टू पाकिस्तान, आई एम बिलोंग्स टू बहावल नगर, या आई एम बिलोंग्स टू पंजाब, आई एम फ्रॉम पंजाब. सो यू कैन से दैट. एंड देन आपने अपनी जॉब के बारे में बताना है, आपकी जॉब कहाँ आप जॉब कर रहे हैं, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, या वहाँ पे आप क्या जॉब कर रहे हैं. उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताना है कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, या आपने रिसेंटली अगर क्वालिफ़िकेशन अपनी कोई डिग्री ली है तो उसके बारे में बताना है, या आप फ्रेशर हैं वो बताना है, या आपने पहले से क्वालिफ़ाइड हैं, 4-5 साल आपको हो चुके हैं क्वालिफ़ाइड हुए हुए, तो आपने वो बताना है. उसके बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरह के इंसान हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं या आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं, आप किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या कैसे हैं, तो वो आपने बताना है. तो उसके बाद जो 8 स्टेप वो 8 स्टेप है, आपने अपनी स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि आपकी किसी कोई जॉब एक्सपीरियंस है आपको, या आपके पास कोई स्किल्स हैं तो वो क्या हैं, उनके बारे में आप बताएंगे. उसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है कि आपकी क्या फैमिली है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और आपकी फैमिली में अगर कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे है या कोई बहुत अच्छे से कहीं काम कर रहा है तो उसका भी आपने मेंशन कर देना है. उससे ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. अगर फ़र्ज़ करें कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आप बता दें तो ज़्यादा अच्छा है. उसके बाद आपने अपनी हॉबीज़ बतानी है, ऐसी हॉबीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा असर डालें. फ़जूल किस्म की हॉबीज़ नहीं बतानी, ऐसी हॉबीज़ बतानी है जो कि आपके इंटरव्यू के इंप्रेशन को और अच्छा कर दें. जैसे रीडिंग्स हो गया, बुक रीडिंग है, लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग है, कुछ भी आर्टिस्टिक टाइप की कि जो आपका अच्छा इंप्रेशन डाले नेक्स्ट पर्सन पे. ठीक है, अब चलते हैं फाइनली बेसिक जो इंटरव्यू है किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा लिख कर और साथ में आपको समझाऊंगी कि आपने इस तरह से उस इंटरव्यू को लर्न करना है. उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, अपनी डायरी पे नोट कर लेना है, और उसमें आप कुछ चेंजिंग्स अपने हिसाब से भी कर सकते हैं. जैसे अब मैं जो आपको सिखाऊंगी उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अच्छे से याद कर लेना है. जब आप अच्छे से याद कर लेंगे उसके बाद फिर आप उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं अपने हिसाब से.
अब जैसे कि ये अब इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, सेम लाइक एज गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, या अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ये थैंक यू हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद आपने अपना नाम बोलना है। हाउ टू स्टार्ट, हाउ यू कैन स्टार्ट, सो स्पीकिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। माई नेम इज़ रुबाब ज़ारा एंड आई एम फ्रॉम पंजाब। Nowadays, I am doing nothing, but I have been working in the school as a science teacher. अब इसमें मैंने बताया है कि मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने ख़ुद को इंट्रोड्यूस कर सकूं। और मेरा नाम रुबाब ज़हरा है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। आजकल मैं कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन मैंने काफ़ी अरसा एक स्कूल में साइंस टीचर की जॉब करती रही हूँ। And the sixth point is to tell something about personality. So I can say that I am self-motivated and hard-working person. I am creative and honest person. I am confident about my work and it's my strength. सो मैं कह सकती हूँ कि मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड और हार्ड वर्किंग इंसान हूँ, मैं एक क्रिएटिव हूँ और ईमानदार हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अपने काम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब बाएतमाद हूँ। मुझे पता है कि मुझे किस तरह से काम करना है और क्या काम करना है, और यही मेरी ताकत है। ठीक है, ये आपने ज़रूर ऐड करना है, ज़रूर ये अपने बारे में बताना, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना, ये ज़रूर ऐड होना चाहिए। उसके बाद 7th स्टेप है आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो वो आपने ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा ही देना इंट्रो उनको, क्योंकि उनके पास आपकी डिग्रीज़ वगैरह तो ऑलरेडी होंगी। तो आपने कहना है आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन कोई जिसम की है, आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम PU या फ्रॉम IUB, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम ले देना है। उसके बाद आप कह सकते हैं आई हैव डन 3 मंथ कोर्सेज इन, जिसमें भी कुछ लोग कर लेते हैं ना डिफरेंट कोर्सेज। आई हैव डन 3 मंथ कोर्सेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, और यू कैन से दैट इन कंप्यूटर क्लासेस। कुछ भी जो आपने 3 मंथ के कोई कोर्सेज किए हों, अगर किए हों तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये भी ऐड कर सकते हैं आई हैव डन B.Ed। कुछ लोगों ने B.Ed किया होता है, कुछ लोगों ने B.Ed नहीं किया होता, तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मास्टर डिग्री जब आ जाती है फिर उसमें बाकी डिग्रीज तो आ ही जाती हैं, जो जिसमें मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है और जिसमें बैचलर है। ठीक है, वो सब डिग्रीज तो फिर अंदर आ ही जाती हैं, उनको भी अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो स्टेप ए इज टू टेल समथिंग अबाउट योर स्किल्स। सो इसमें आप कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, सो करंटली आई हैव नो स्किल्स। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो आप ये बता सकते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी रिसेंटली ही अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, तो मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपकी मास्टर्स के को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप कह सकते हैं आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्कूल टीचिंग, या किसी भी चीज़ में जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप इस पर लिख सकते हैं। क्योंकि जितने साल का एक्सपीरियंस है उसमें आप इतने साल बढ़ा के या कम करके वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हैं। उसके बाद आपने बताना है अपनी फैमिली के बारे में। So the next point is family. I belongs to nuclear family. There are 6 members in my family. My husband is assistant commissioner in the city. You can also mention about your father also. ठीक है, यू कैन मेंशन अबाउट योर फादर आल्सो। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम भी ले सकते हैं। अब इसमें ही मैंने क्या लिखा है, आई एम बिलोंग्स टू न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, छोटी फैमिली जो होती है, जो लोग, एक तो जॉइंट फैमिली होती है ना जहाँ पे सब बहन भाई साथ रहते हैं, जो आपके पापा होते हैं, साथ में उनके भाई होते हैं, वो लोग रह रहे होते हैं, दादू रह रही होती हैं साथ में, दादा बू रह रहे होते हैं। और एक फैमिली होती है जहाँ आप अलग से रह रहे हैं, एक अलग से घर में रह रहे हैं, उसे आप अलग से रहने को कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। छोटी फैमिली को हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। यू कैन आल्सो से दैट आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। एंड अगर आप कहेंगे आई एम बिलोंग्स टू न्यूक्लियर फैमिली तो ये भी सही है। अगर आप कहेंगे आई एम लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली तो ये भी ठीक है, काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, तो ये भी ठीक है। सो देर आर जितने भी मेम्बर्स हैं आपकी फैमिली में, देर आर 6 मेम्बर्स, देर आर 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली। ओके, आप उसके बाद आप कह सकते हैं अपने पापा का नाम लेना चाहें तो उनकी जो भी पोस्ट है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बारे में हम मेंशन कर देंगे। माय फादर इज़ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द सिटी, बट हेयर आर आई एम गोइंग टू शो माय हस्बैंड अबाउट माय हस्बैंड बिकॉज आई एम मैरिड।
तो मैं अपने हस्बैंड का शो करना चाह रही हूँ। माई हस्बैंड इज़ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द सिटी। तो कोई भी अच्छी पोस्ट पर अगर वो हैं तो आपने ज़रूर बताना है, ज़रूर मेंशन करना है, इससे आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ हॉबी। तो यहाँ पे आपने अपनी हॉबी बतानी है, अच्छे वाली हॉबी बतानी है। माई हॉबी इज़ टू लर्न अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, कि मेरी हॉबी है कि इंग्लिश के बारे में सीखना, ठीक है। या यू कैन से दैट माई हॉबी इज़ टू लर्न अबाउट अरबिक, अबाउट उर्दू, अबाउट उर्दू पोइट्री, ठीक है। इस तरह का भी आप कुछ कह सकते हैं, जो भी आपकी हॉबी है अगर। एंड आई लव टू डू अरबिक कैलीग्राफी एंड पेंटिंग्स, तो आप इसमें कोई और अपनी हॉबी ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी हॉबी है। आई लव टू डू गार्डनिंग, ओके, तो आप इस तरह की भी अपनी हॉबी ऐड इसमें कर सकते हैं। इन माई फ्री टाइम एंड नाउ माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट एन गवर्नमेंट जॉब। तो लेकिन अब मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो है कि मुझे कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं आप में जा रहे, अगर आप किसी और ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जो गवर्नमेंट की नहीं है, तो वहाँ आप ये कह सकते हैं नाउ माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू डू जॉब इन एनी रेपुटेड कंपनी, कि किसी अच्छी कंपनी में जिसकी अच्छी वैल्यू है माशरे में, उसमें जॉब करना। वेयर आई कैन यूटिलाइज़ माई स्किल्स, जहाँ मैं अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर सकूँ, यूटिलाइज़ कर सकूँ। एंड इम्प्रूव माई करियर पाथ, और जहाँ मैं अपना करियर का रास्ता और इम्प्रूव कर सकूँ, जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके अपने करियर को अच्छा, मज़ीद अच्छा कर सकती हूँ। तो व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर, हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो ये बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा जॉब इंटरव्यू मैंने आपको दिया है, इसको आपने नोट कर लेना है और इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कहाँ कहाँ से कौन से स्टेप्स आपको ज़्यादा मज़े के लगे और किन की आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आई। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह से मेरी और ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं व्यूअर्स फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।